सबसे महत्वपूर्ण स्टेज में एंटर कर रहे सुभाष स्वराज सरकार के। दिस सेकंड स्टेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज। We all put in lot of efforts in the first stage, और जिसके कारण we crossed the registration by 10,000. Now it is more than 11,000. 11,000 से अधिक पंजीयन हुआ है. So that list has to be finalized by the prantas. They must have done that. Today there was this program was there in Vidarbha Pranta. I was told that there are almost 1700 participants who have registered in Vidarbha Pranta after they have collected all the data, apart from those who have registered online. तो वो 1700 की सूची अभी नहीं आई होगी, तो वो भी yuva@bsmbharat.com पे भेजना है. In the same way, because in the list, final day list, it was only some 1200 odd, and they are saying more than 500 more have been added. कोकण में भी शायद ऐसा हुआ है, दिल्ली में भी ऐसा हुआ है. So that list should also be sent to yuva@bsmbharat.com. So that was the first stage, registration. And then the second stage was collection of research papers. शोध पत्रों का एकत्रीकरण ये अपना दूसरा विषय था. And that has also been successfully done in almost all the prantas. Some of the prantas, there are more than 50% participants who have sent their registered, more than 50% of the registered participants have sent the research paper. कुछ प्रांतों में यह संख्या 50% से अधिक है, पर कुछ प्रांतों में 20%, 30% लोगों ने शोध पत्र लिखे हैं. 20-30% in some other prantas. But overall, the average is almost 40% at the whole national level. लगभग 40% लोगों ने शोध पत्र लिखे, और ये मेरी अपेक्षा से 4 गुना है. It is 4 times what I expected. I expected only 10%. 11,000 लोग हुए तो मुझे लगा 1100 शोध पत्र आ जाए तो बहुत अच्छा. जिस प्रकार का मतलब स्थिति है, उस स्थिति में शोध पत्र लिखना बड़ा कठिन काम था. But we have successfully done the follow-up, and the prantas have been able to collect the research papers. And in the second stage, evaluation. So registration and collecting the research paper was the first stage. Second stage is evaluation and conducting this research warrior award ceremony, award camp, Shodh Veer Samman Shivir. This is very important, and we have to do continuous follow-up. बार बार फोन करके, अनुवर्तन करके, जितनों ने शोध पत्र लिखा है वो सारे इस शिविर में आए, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए. Many pranta have decided the date of the Shodh Veer Samman Shivir. Most of them have decided the dates and venue. नहीं हुआ होगा तो आजकल में, today or tomorrow, it should be done. Evaluation must have been completed. मूल्यांकन अभी तक पूरा हो गया होगा. Accordingly, some number has been allotted to each pranta according to the number of registration. How many participants can come to Delhi for the final young researchers conclave? उस समागम के लिए कितने लोग आ सकते हैं, युवा शोधवीर समागम में कितने लोग आ सकते हैं, इसकी सूची दी गई है और आपको बताया गया कि कितने लोग आएंगे. तो पुरस्कारों का चयन करते समय, in all the 4 categories, you have to give prizes at the pranta level. You have to decide the prize, what should be the prize, and they should all come to Delhi, plus a few Yuva Karyakarta Sanyojak or something like that. So that cap is been given for each pranta. For selection of those persons, this evaluation on paper is not just enough. Those who will get award in the at the pranta level should also attend the pranta level research warrior award camp. इस शोधवीर सम्मान शिविर को उपस्थित रहे बिना दिल्ली के कोई नहीं आएगा. इसलिए यह शोधवीर सम्मान शिविर बहुत महत्वपूर्ण है. शोध पत्र बहुत अच्छा लिखा हो और शोधवीर सम्मान शिविर में नहीं आए, you should not give him the prize.
prize should not be given without presentation. So they should be asked to do the presentation. प्रेजेंटेशन के 5 मार्क्स और दीजिए, और जो प्रेजेंटेशन में जिसको 0 होंगे उसको प्राइज मत दीजिए. मतलब जो उपस्थिति नहीं रहा शिविर में उसको पुरस्कार मत दीजिए, चेंज कर दीजिए, नेक्स्ट वाले वेटिंग लिस्ट वाले को दीजिए. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. द शोधवीर सम्मान शिविर और द रिसर्च वॉरियर अवार्ड कैंप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज फॉर प्रिपरेशन ऑफ यंग रिसर्चर्स कॉन्क्लेव. इसलिए वो 4 घंटे का, that program has to be of 4 hours, minimum of 4 hours program. It doesn't happen in 3 hours. Today Vidarbha kept 3 hours, it was not completed. It should have been kept 4 hours. It took 4 hours. 4 घंटे का कार्यक्रम रखिए, उस हिसाब से अरेंज कीजिए, वेन्यू भी अरेंज करते समय और सब अरेंज करते समय. And there will be 4 sessions. First session will not be the inauguration session. It will be called परिचय session, introduction session. पहला सत्र परिचय सत्र होगा, जिसमें अपने में से कोई व्यक्ति शिक्षण मंडल का परिचय देगा. शिक्षण मंडल introduction will be done. PPT has been provided by Amit ji to many people. Or you can prepare your own PPT, or you can, without PPT also, you can give the शिक्षण मंडल परिचय in 15 to 20 minutes, not more than that. Introduction of Bharatiya Shikshan Mandal, BSM, in 15 to 20 minutes. And then the tone setting for that camp. These 2 things have to happen in the first thing. So in the first 35 to 40 minutes, we should not invite anybody from outside. Our own people, our Pranta Adhyaksha, our Pranta Mantri, or somebody from Bharatiya Shikshan Mandal in the Pranta. He or she should be there. एंड अवर युवा मंडल संयोजक और युवा आयाम संयोजक, वो लोग उसको ले. उसमें 2 चीजें होगी. वन इज भारतीय शिक्षण मंडल इंट्रोडक्शन, सेकंड इज टोन सिटिंग फॉर द कैंप, रिसर्च वॉरियर अवार्ड कैंप. 2 बातें उसमें हमको करनी है. भारतीय शिक्षण मंडल का परिचय देना, और उसके बाद में उस शिविर का और वातावरण निर्मित करनी. उस वातावरण निर्मित में 3 बिंदु महत्वपूर्ण अपने को देखने हैं. दिस Today's camp of 4 hours, आप पॉइंट्स नोट कीजिए. रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग बाद में सुनने को समय नहीं मिलता है, इसलिए कागज पेन लेकर के नोट कीजिए. पहले सेशन के विषय बिंदु बता रहा हूं. पॉइंट्स फॉर द फर्स्ट सेशन, इंट्रोडक्शन सेशन, दैट इज टू बी कवर्ड. भारतीय शिक्षण मंडल का परिचय कवर करना है. उसमें अपने 5 सोपान और 7 गतिविधि, और ये आप लोग कर लेंगे. ध्येय वाक्य और ध्येय श्लोक का उपयोग उसके विचार को रखने के लिए है. दैट इज द इंट्रोडक्शन. देन द टोन सेटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. इन दैट टोन सेटिंग, द फर्स्ट पार्ट विल बी व्हाई वी कंडक्टेड सुभाष स्वराज सरकार. सुभाष स्वराज सरकार का उद्देश्य क्या था. उसमें 2 बातें महत्वपूर्ण है. नंबर 1, रिसर्च का महत्व हर व्यक्ति के जीवन में, पूरे भारतीय शिक्षा व्यवस्था में लाना, और बचपन से लोग रिसर्च में लगे, ये पहला विषय है. इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च शुड बी एम्फसिस्ड इन द एजुकेशन. दैट वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग. दूसरा उद्देश्य था शोध पत्र लेखन को सहज बनाना. रिसर्च पेपर राइटिंग शुड बी मेड यूजर फ्रेंडली. उसके बारे में जो भय है युवाओं में, उस भय को दूर करना. The fear that I cannot write research paper. How can I write research paper? I can write essay. I cannot write research paper. That kind of a fear is there in the common student. That has to be eradicated. And to counter that, this research paper competition was conducted. And the third and the most important, first is to make an ambience for research. The second is to counter the fear of writing research paper. And the third and the most important is create an alternate narrative about our independent struggle. भारत के स्वतंत्रता संग्राम और भारत के भविष्य को लेकर के एक विमर्श पैदा करना कि केवल कुछ लोगों के कारण नहीं हुआ है, सुभाष चंद्र बोस और ऐसे अनगिनत अनाम वीरों के कारण ये हुआ है. So these are the 4 points in tone setting. These are the 4 points in why सुभाष स्वराज सरकार. That is first point. उसके ये 4. फिर दूसरा पॉइंट इसके अंदर आएगा टोन सेटिंग में. दूसरा विषय बिंदु इस टोन सेटिंग में आएगा, शोधवीर का सम्मान शिविर क्यों कर रहे हैं. सो इन दैट
वी हैव टू एम्फसाइज दैट आज जितने यहाँ पर आए जिन्होंने रिसर्च पेपर लिखे और इस शिविर में पहुंचे वो सारे शोधवीर है। हम आप शिविरार्थियों को शोधवीर मानते हैं। We consider all of you as research warriors, and hence the warrior should be ready, should be tough, should be ready to undergo rigor. जो वीर है वो इतना कठोर होना चाहिए स्वयं के साथ में कि वो पूरा अनुशासन से इस शिविर के छोटी छोटी बात का पालन करे। इसलिए शोधवीरों का शिविर होने से आप सब लोगों से यह अपेक्षा है कि आप सब लोग पूरे अनुशासन से शिविर के हर सत्र में जो बताया जाए उसका ढंग से पालन करेंगे। नंबर 2 इज इट इज सम्मान। इट इज अवार्ड कैंप, इट इज अ सम्मान शिविर है। तो सम्मान मीन्स वी रिस्पेक्ट ऑल ऑफ यू। यू आर द शोधवीर विच आर सिलेक्टेड फ्रॉम अ लॉट एंड यू आर सिलेक्टेड बाय योर ओन सेल्फ। यू सिलेक्टेड योर ओन सेल्फ बाय राइटिंग द रिसर्च पेपर। इसको इस ढंग से बता सकते हैं कि हम करोड़ों लोगों के पास गए, हमने इतने पोस्टर्स और इतने जगह पर बातचीत करके लोगों तक विषय पहुंचाया। उन millions of peoples were contacted, and out of those millions of people, only 11,000 people registered. केवल 11,000 रजिस्टर हुए, और उसमें से भी केवल इतने लोगों ने पेपर लिखे, और उसमें से भी कितने इतने हमारे सामने उपस्थित हुए। जैसे विदर्भ में 1700 registered, 550 wrote the research paper, and almost 250 attended today's शिविर। तो 250 selected from 1700. So we have to emphasize कि आपका सम्मान इसलिए, और ये सिलेक्शन आपने खुद ने किया है। You have self selected yourself. आपने रजिस्टर नहीं किया होता, you would not have been here. आपने शोध पत्र नहीं लिखा होता, you would not have been here. रजिस्टर भी कर लेते, शोध पत्र भी लिख देते, लेकिन आज नहीं आते तो आप सिलेक्टेड नहीं होते। So 3 steps you have self selected, and ये सम्मान उस चीज का है, उस चॉइस का है। We are awarding you with this camp. This camp itself is an award, and we are awarding you with this camp because you have self-selected for a good cause. ये शोधवीर सम्मान शिविर में पहला शोधवीर, we have to establish what is expected of a warrior. Number 2, why we are felicitating or awarding them, and number 3, कैंप का अर्थ क्या है, शिविर का अर्थ क्या है। शिविर किसका होता है? सेना का शिविर होता है। सेना की जो छावनी होती है उसको शिविर कहते हैं। कैंप इज अ वर्ड एसोसिएटेड विद द आर्मी। वेयर आर्मी स्टेज इट इज कॉल्ड एज द कैंप, एंड कैंप इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द बैटलफील्ड। रणभूमि की तैयारी के लिए शिविर होता है। अभी वर्ल्ड कप में अपनी टीम जानी थी क्रिकेट की, तो वो शिविर में रही, तैयार हुई, वेंट टू द वर्ल्ड। So camp is for becoming ready for the field. We have to work in the field. इसलिए पहला इंट्रोडक्शन बीएसएम का, और शोधवीर सम्मान में पहला इंट्रोडक्शन अपना टोन सेटिंग में पहला सुभाष स्वराज सरकार का, दूसरा शोधवीर सम्मान शिविर का, और थर्ड शिविर का परिचय। शिविर के 4 सत्र कैसे होंगे? दिस फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन सेशन, परिचय सत्र। थर्ड टोन सेटिंग में थर्ड परिचय देना है, शिविर परिचय। तो पहले बीएसएम परिचय 10-15 मिनट में, फिर शिविर के टोन सेटिंग में फर्स्ट गिविंग द इंपॉर्टेंस ऑफ सुभाष स्वराज सरकार, द ऑब्जेक्टिव्स एंड व्हाट इज अचीव्ड। नंबर 2, व्हाई दिस इज कॉल्ड एज रिसर्च वॉरियर अवार्ड कैंप। वॉरियर का अर्थ क्या, अवार्ड का अर्थ क्या, कैंप का अर्थ क्या। और तीसरा पॉइंट है शिविर में 4 घंटे में हम क्या, 4 घंटे में 4 सेशन में हम क्या करने वाले। पहला इंट्रोडक्टरी सेशन होगा, सेकंड सेशन विल बी अवर मंडल, सो दैट इंट्रोडक्शन ऑफ मंडल हैज टू बी गिवन। मंडल एज ए कार्य पद्धति, अपना जो साप्ताहिक मंडल होता है उसके बारे में बताएं, और उस साप्ताहिक मंडल के अभ्यास के लिए अगला 1 घंटा अपन मंडल का लेने वाले। सो सेकंड सेशन इज ऑफ मंडल। इन दैट सेकंड सेशन ऑफ मंडल वी हैव टू कंडक्ट अ मंडल ऑफ according to the number of participants which have come for the camp. कैंप में कितने सहभागी आए उसके अनुसार गण बनाने पड़ेंगे। We will divide them into gana, into group called gana. Gana is a very auspicious name for group. GANA, gana. Gana should be
called. So how many Gana? So depending on your number of participants. If your Pranta has got 100 participants, you can have say 6 or 7 Gana. That means 15 to 20 should be the number of participants in one Gana, not more than 20 and can be less than 15. It should be 12 to 20. 12 से 20 के बीच में एक एक गण बने, ऐसे गण बनाने हैं. तो दूसरा सेशन अपना मंडल का होगा, तीसरा सेशन पेपर प्रेजेंटेशन का होगा और चौथा सेशन पाथेय का, आह्वान का, आहुति का. So these are the 4 sessions: introduction, mandal, number 3 is paper presentation, and number 4 is valedictory. So these 4 sessions will be there in our Shodhavir Samman Shivir, in our Research Warrior Award Camp. ये परिचय देना टोन सेटिंग में, उसमें थोड़ा सा मंडल क्यों, इसका भी परिचय दें. Then in second session we will form the mandal in Gana. Gana should be formed at the time of registration itself. Very simplest way of forming the Gana. गण विभाजन का सबसे सरल तरीका है, जितने गण बनाने उतने कॉलम बना लीजिए, क्रिएट अ शीट, और जो आता है वो एक नंबर पहले गण में, दूसरा दूसरे गण में, तीसरा तीसरे गण में, रजिस्ट्रेशन को ऐसा आड़ा कर दीजिए, आपके सारे गण इक्वल हो जाएंगे. वेरी सिंपल. फ्रॉम a group of 10 people comes, you divide them into 10 gana. Next group comes, we write the second, third. पूरा होने के बाद फिर पहले पे आइए. So each gana will have equal number of participants. So this horizontally writing the name of the columns of the gana and writing registration is simple way of doing गण विभाजन during the registration. गण विभाजन में बहुत समय नहीं लगाना, शुरुआत में ही गण बन जाए. और जो हॉल में बैठने की व्यवस्था है वो गणशाह गण, यदि कमरों में बैठने हैं तो वो 5 या 10 मिनट में मंडल के लिए भेजना आना चाहिए. इसलिए पहला जो सेशन है उसमें 10-15 मिनट का भारतीय शिक्षण मंडल का परिचय, 10-15 मिनट का टोन सेटिंग और 10-15 मिनट गण विभाजन करके मंडल के लिए भेजना. मंडल को पूरा 1 घंटा मिलना चाहिए. मंडल शुड बी फुल 1 hour. सो फर्स्ट सेशन 45 मिनट्स, फिर 10-15 मिनट्स फॉर भारतीय शिक्षण मंडल इंट्रोडक्शन, 10-15 मिनट्स फॉर टोन सेटिंग, 10 मिनट्स फॉर making the gana, preparing the gana, dividing the gana and sending them for मंडल. अब 1 घंटे के मंडल का विषय है, मंडल का विषय हमने तय किया है, द इम्पोर्टेंस ऑफ डेडिकेटिंग टाइम फॉर द नेशन. राष्ट्र के लिए समय दान का महत्व. सो समय दान, डेडिकेटिंग टाइम, ये अपने मंडल का थीम है. व्हाई वन शुड डेडिकेट टाइम. मैं अभी हूं 32 साल हो गए, 32 years I have dedicated my time. Why? What is the importance of dedication of time? So that should be the mandal. In mandal everybody should speak, because these are all Shodhavir and they have written research paper. उनके बहुत अच्छे विचार होंगे, बहुत अच्छे विचार आएंगे. कुल मिला के मंडल में वातावरण बनना है कि वो मी फॉर माई नेशन के लिए तैयार हो जाए. The 1 month dedication in social internship dedication, what they have to do, we have to prepare that in the mandal. मंडल के विषय बिंदु तैयार करके, सबसे बुलवा करके, सबसे मुख से ये निकालना समयदान का जीवन में महत्व क्या है. फॉर दैट वी शुड कीप सम एग्जाम्पल्स कि किस किसने समयदान दिया, कैसे कैसे लोग हैं. तो देश के लिए अपने आप को समर्पित करने वाले लोगों के उदाहरण दे करके, उनसे उदाहरण निकलवा करके, what is the importance of dedicating time for the cause of the nation, that should be emphasis and that should be discussed in mandal. In mandal everybody should be motivated, inspired to contribute their thought. और documentation करना मंडल का. मंडल should be documented. उसी में से 2-3 लोगों को, एक को नहीं देना, एक मंडल में 2 या 3 लोगों को इस बात की जिम्मेवारी देना कि वो नोट्स निकालें और बाद में फेयर करके सबमिट करने को कहना. Each mandal will submit the points that were discussed in their mandal. So for that 2-3 reporters should be identified in the mandal. From our side, number of mandal वो पहले से पता हो ऑर्गेनाइजर्स को, और उतने मंडल संयोजक पहले से तय कर. कितने मंडल बनाने वाले, उतने मंडल संयोजकों की पहली तैयारी कर ले, उनकी बैठक ले ले, उनको ये समझा दे जो मैं बता रहा हूं. एंड दोज मंडल संयोजक विल देन
During that mandal, first thing they will do, they will depute 2 or 3 reporters. 2-3 लोगों को नोट्स लेने का काम देंगे कि आप नोट्स लीजिए और बाद में फेयर करके सबमिट कीजिए ताकि वो अपने प्रांत के पास जाए. That documentation is very important. The last 5 minutes of the mandal should be conclusion on dedication of the time. उसमें 1st December to 30th December, what that social internship program we are going to do, me for my nation. मैं मेरे देश के लिए 1 महीना दूंगा 1 दिसंबर से 30 दिसंबर के, उसकी सूचना अवश्य देनी चाहिए. और दूसरा लास्ट 5 मिनट में मंडल संयोजक को यह काम करना है कि अपने अपने विद्यालय महाविद्यालय में जाकर के अपने घर के पास में ऐसा मंडल शुरू करने के लिए सबको प्रेरित कर. सो इन मंडल final 5 minutes, 2 things have to be done. Number 1, complete instruction of social internship program which is going to happen during 1st December to 30th December. उसकी पूरी instructions of that should be given. Written instructions रख करके पढ़ करके भी बता सकते हैं. No problem. We have to give complete instruction of 1st to 30th December at the end of the mandal. Second thing that we have to do at the end of the mandal is give a call to them. Call them that after going back in their college, they should conduct such mandal every week. Weekly mandal शुरू करने के लिए आह्वान करना चाहिए उस मंडल के संयोजक को अंत में 5 मिनट में. You can tell them that wherever they will go for the social internship, those 30 days also they will have to conduct mandal, at least one mandal there. That's why they should. ये शुरू में भी बताया जा सकता है मंडल के, ताकि वो ध्यान से मंडल को देखे कि मंडल कैसे लिया जाता है. अपने को भी बाद में मंडल लेना है, ये यदि पहले से बताएंगे. और लास्ट में मंडल शुरू करने का आह्वान करना चाहिए. सो ये 2 बातें मंडल के एंड में हो. The third session will be paper presentation session. So depending on the number of participants, आपके उस शिविर में कितने सहभागी आए हैं, उस पर निर्भर करेगा कि कितने स्थानों पर आप पेपर प्रेजेंटेशन करेंगे. This can be according to category. Like in Vidarbha, more participants were there in the graduate category. So graduate category, 1 presentation. Postgraduate category, 1 presentation. But the PhD scholar, very less people, and open, very less people, so they made it together. So 3 places paper presentation was there. हो सकता है कि पोस्ट ग्रेजुएट में और ज्यादा लोग आए तो उसके 2 ग्रुप करने पड़े. नो प्रॉब्लम. आपके ऊपर है, आप तय कीजिए 4 जगह करना, 5 जगह करना, 3 जगह करना. पेपर प्रेजेंटेशन 1 hour will be there. Each paper should, depending on how many paper presenters are there, you can give 3 to 5 minutes to each paper. और वो देख करके 1 घंटे में 15 से 20 लोग केवल प्रेजेंट कर सकते हैं. उतने ग्रुप आपको करने पड़ेंगे, उतने जजेस लगेंगे. लेकिन जितने जगह पेपर प्रेजेंटेशन होगा, you will have to at least 2 or 3 judges each room. So that has to be pre-arranged. So in paper presentation, 1 timekeeper, 1 calling the names and timekeeper, and 2 or 3 judges in each room. ये तैयारी अपने को पेपर प्रेजेंटेशन के सेशन के लिए करनी है. जितने आपके पार्टिसिपेंट्स होंगे उसको डिवाइड करके 3 जगह या 4 जगह आप पेपर प्रेजेंटेशन करवाइए ताकि 1 घंटे में पूरा हो जाए. 15 से 20 लोगों से ज्यादा 1 घंटे में पेपर प्रेजेंट नहीं कर सकते. सो आपके यदि 100 लोग हैं तो आपको 6 जगह करना पड़ेगा, तभी होगा. 5 या 6 जगह करेंगे तब होगा. इन ईच रूम वेयर द पेपर प्रेजेंटेशन विल बी हैपनिंग. आज वो तैयारी नहीं थी, आज संख्या ज्यादा थी और 3 ही जगह किया था, इसलिए आज पेपर प्रेजेंटेशन लिंगर ऑन हुआ. 4 बजे समापन शुरू होना था, वो 4:30 बजे शुरू, सब लेट हुआ. पेपर प्रेजेंटेशन के लिए उतने रूम बनाने पड़ेंगे, पैरेलल रूम, जिससे कि एक रूम में 15 से 20 लोगों का ही पेपर प्रेजेंटेशन हो सकता है. 15 to 20 presenter in each room. So many parallel rooms will have to be arranged for paper presentation. In each room we will need at least 2, in ideal condition 3 judges. 3 judges होना अच्छी बात है. 3 नहीं मिले तो 2 तो जज होनी चाहिए हर रूम में. तो आपके यदि 10 रूम होते हैं तो आपको 20 जज लगेंगे या 30 जज लगेंगे. आपके 5 रूम होते हैं तो 15 जज लगेंगे. तो ये भी पहले से अपने संपर्क में जो प्राध्यापक है उनको, जो इवैल्यूएटर्स है उनको कांटेक्ट करके अरेंजमेंट फॉर जजेस इन द पेपर प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन द लास्ट सेशन इज about the valedictory session. In that you can call
some good academician as a chief guest. Vice Chancellor, Principal, retired Vice Chancellor, ऐसे किसी शिक्षाविद को जो आप उसमें मुख्य अतिथि के रूप में बुला सकते हैं। वो शिक्षाविद के हाथों से अपन पुरस्कार और सर्टिफिकेट दे सकते हैं। इसलिए ऐसा एक वाइस चांसलर, प्रिंसिपल या कोई ऐसा रिटायर्ड वाइस चांसलर जिसका समाज में सम्मान है, ऐसा कोई विद्वान लेखक शुड बी कॉल्ड फॉर चीफ गेस्ट। उनको पहले ही बताना कि आपको 15 या 20 मिनट बोलना है, उससे ज्यादा नहीं, 10 या 15 मिनट ही बताना, सो दैट दे विल एंड अप कंक्लूड बिफोर 20 मिनट्स। So that one person and one person from Bharatiya Shikshan Mandal who will be giving valedictory address. पाथेय आहुति सत्र लेने के लिए एक व्यक्ति जो आह्वान करेगा। सो अंतिम सत्र का जो स्वरूप होगा वो फॉर्मेलिटीज के 5-7 मिनट, एंड इन द फॉर्मेलिटीज डोंट गिव गार्लैंड, बुके, और दैट इज नॉट भारतीय शिक्षण मंडल वे ऑफ डूइंग। भारतीय शिक्षण मंडल वी ओनली गिव ग्रंथ गुच्छ, वी ओनली गिव बुक्स, we felicitate with books. You can put Angavastra or Shrifala, that can be given. Coconut can be given. Like this, Angavastra can be given. But no garlanding or no flowers. पुष्प गुच्छ नहीं देना है, हार माला नहीं पहनानी है, ऐसा अंगवस्त्र, नारियल और पुस्तकें, ग्रंथ गुच्छ देना है। और फॉर्मेलिटी कम से कम रखनी। समापन सत्र में ध्येय श्लोक होगा, संभावना हुई तो संगठन गीत, कोई अच्छा गाने वाला हो तो, नहीं तो रिकॉर्डिंग से। सम्मान मतलब अतिथियों का जो मंच पे बैठे वो 3 या 4 लोगों से ज्यादा मंच पे नहीं रखने चाहिए। 3 आइडियल है, मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता और शिक्षण मंडल का एक प्रतिनिधि, प्रांत अध्यक्ष और प्रांत मंत्री। 3 maximum 3 or 4 should be on the stage, not 6-7 people sitting on the stage. That is not needed. शिक्षण मंडल का एक ही प्रतिनिधि होना पर्याप्त है। प्रांत मंत्री भी बैठा है, प्रतियोगिता संयोजक भी बैठा है, युवा आयाम का प्रमुख भी बैठा है। दैट डजंट लुक गुड। जो वेन्यू देने वाला है उसका प्रिंसिपल या वो बैठा हो तो वो ठीक है, तो 4 हो जाएंगे, बट नॉट मोर देन 4 or 5. That doesn't look a Bharatiya Shikshan Mandal program. That doesn't look like a shivir. That doesn't look like a camp. That looks like a political program. So we are not doing any political program. ये अपने को ध्यान में रखना है। शिक्षण मंडल का अपना जो संगठन गड़े चलो है उसमें क्या करना क्या नहीं करना, डूज एंड डोंट्स दिए हुए। डोंट पुट अ प्लास्टिक बॉटल ऑन द टेबल, नो, यू पुट ग्लास or some copper or some metal, even steel glass will do, but or glass itself can do, but not plastic. Don't use plastic. फ्लेक्स भी अवॉइड कीजिए, फ्लेक्स भी मत इस्तेमाल कीजिए, कोई प्लास्टिक नहीं होना चाहिए। शिक्षण मंडल का कार्यक्रम लगना चाहिए, ग्रंथ गुच्छ देना है, फ्लावर्स नहीं देना, ये बात ध्यान रखना। एंड देन द शेड्यूल शुड बी सच दैट फर्स्ट फॉर्मेलिटीज 5 to 10 minutes. After that, the chief guest will give the talk. Then distribution of prizes. Certificate can be distributed afterwards at जहां पंजीयन किया था, जहां रजिस्ट्रेशन किया था, वहां कर सकते हैं। And then, if possible, एकल गीत, individual song can be there. If it is not there, no problem. Final 30 minutes or 35 minutes to the mukhya vakta, the valedictory address, Ahuti Satra. That 30 minutes. After Ahuti Satra, only Sarve Bhavantu Sukhina or Janagana Mana, nothing else. It will end with national song or Shanti Mantra at the end of the Ahuti Satra. Ahuti Satra के बाद आभार प्रदर्शन वगैरह भी नहीं रखना, वो पहले ही कर लेना। आहुति सत्र से पहले आभार प्रदर्शन करना। आहुति सत्र के बाद डाइल्यूट नहीं करना, उस माहौल को लेकर के जाना चाहिए। आज के कार्यक्रम में वो भी गड़बड़ हुआ। आहुति सत्र होने के बाद मुख्य अतिथि आए वाइस चांसलर, तो वो बाद में बोले, तो वो सारा आहुति सत्र का जो टेम्पो था वो धीरे धीरे डिफ्यूज होता गया और बच्चे वापस जाते समय आहुति सत्र को लेकर के नहीं गए। उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव भी हुआ, वो सब पहले करना है। सो अंडरस्टैंड द minute to minute of the valedictory function. Formalities will start with our Dheya mantra, Uttatkarmayanda Bandhaya. After that, we will felicitate those who are sitting on the stage. Then 10 to 15 minutes of the chief guest address. Then 10 minutes for distribution of certificates, distribution of prizes.
certificates can be distributed after the Ahuti Satra at the registration. ABCD wise you can keep and register. The participant certificates can be given at the registration table. And at the end, 30 to 35 minutes for the Mukhya Vakta, chief speaker, valedictory speaker, address giver, who should be from Bharatiya Shikshan Mandal. The valedictory speech should be a clarion call. It should be an emotional call, including why we need to have researchers today. वो एक आह्वानात्मक, भावनात्मक आह्वान होना चाहिए कि शोधवीर बनना कितना आवश्यक है. स्वतंत्रता से पहले देश के लिए मरने वाले वीरों की आवश्यकता थी, आज देश के लिए जीने वाले वीरों की आवश्यकता है. So those who dedicated their life, who died for the country, were needed before independence in independence struggle. Now because we are independent and 75 years of independence we are celebrating, we need such warriors who will live for the country, who will work for the country, not who will die for the country. That area is different. So that is that kind of a clarion call for giving examples from Subhash Chandra Bose's life, giving example from other martyrs' life, giving example from those who dedicated their life like APJ Abdul Kalam, Dr. George Kurian, the scientists of ISRO, those who are living for the country, giving such examples. This emotional appeal should be made that today it is more important to give time for the country and dedicate living for the country, not dying for the country. सुभाष चंद्र बोस यदि आज जीवित होते तो वो देश के लिए मरने का आह्वान नहीं करते, तुम मुझे खून दो नहीं कहते, वो कहते तुम मुझे समय दो. देश के लिए मरो नहीं कहते, देश के लिए जियो कहते. तो आज आपके सामने सुभाष बाबू आकर के आपको आह्वान कर रहे हैं कि आप देश के लिए कुछ समय दीजिए. Second point which should be emphasized is being human. We have a purpose of life. What is the purpose of your life? That should be the question asked to the youth. जीवन का उद्देश्य क्या है? There has to be a noble purpose. एक उदात्त ध्येय के लिए जीवन जीना है. पेट भरने के लिए तो कुत्ता, बिल्ली और सुअर और कीड़े मकोड़े भी जीते हैं. सारे प्राणी अपना पेट भरते हैं. मनुष्य का जन्म लिया है तो कुछ उदात्त ध्येय के लिए लिया. इस प्रकार का होगा. So that call should be for the purpose of life. Just filling your belly, filling your stomach. Each animal does that. So how different is our life being human? So it should be dedicated for something nobler, something bigger. And what is that something nobler? The third point is देने के लिए जीना है. प्रदानम आदानम से अधिक होना चाहिए. In our life, we should be able to contribute. Contribution is the only evaluation of life. Not taking but giving. How much you have taken, now you should be able to give more. So tyaga, giving, sacrifice is the purpose of human life. So that should be the fourth point. And finally, we should give call that at least 1 month of your life you should dedicate for the nation. Me for my nation. So the final should be with this call. Some of you have won the prizes, some of you have not won the prizes, but you are all Shodhavir. So Shodhavir should dedicate 1 month. और इसलिए बाद में लास्ट में 1 महीना देने का आह्वान करते हुए कहना कि रजिस्ट्रेशन पे जहां आते समय नाम लिखाए थे वहीं पर जाते समय नाम लिखवाइए कि 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक 1 महीना मैं देश के लिए दूंगा, जहां भेजेंगे वहां जाऊंगा. So we should take names from each of them, give them a call, clarion call, that you should all give time for the nation. 1 month for nation, 1st December to 30th December, social internship program, me for my nation. So that final call should be, before you go out at the registration paper, give your name, saying that yes, I will give 1 month. मैं 1 महीना दूंगा. अपने पार्टिसिपेंट जितने आए उसमें से 90% से ज्यादा अपने मी फॉर माई नेशन के लिए रजिस्टर होने चाहिए. और मी फॉर माई नेशन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड फॉर ओनली दोज हु हैव रिटन रिसर्च पेपर. आपके कैंप में आए हुए लोगों को ही केवल 1 महीना मी फॉर माई नेशन के लिए नहीं बुलाना है. उनको कहना आप अपने दोस्तों को बुलाइए. Those who did not register, ask them also to come. More and more people, thousands of people in the Pranta
should be able to give 1 month for social internship. So that should be our final ahwan. And also to the award winners, you can ask at the end to ask them to come for a cup of tea with the chief guest. And there you should talk with them about the modalities of going to Delhi, 11th, 12th and 13th. अवार्ड विनर्स को कार्यक्रम के बाद में, जनगण मन के बाद में या शांति मंत्र के बाद में चाय पीने के लिए बुलाना, मुख्य अतिथि के साथ उनको चाय पिलाना, बिकॉज दे आर अवार्ड विनर. एंड देयर वी शुड टॉक अबाउट देयर मॉडलिटीज. उनके साथ उनसे बात करना कि कैसे आप दिल्ली जाओगे 11, 12, 13 के लिए, क्या करना पड़ेगा, टिकट जल्दी से जल्दी बनाने पड़ेंगे, रिजर्वेशन खत्म हो जाएंगे, ये सारी बात उस समय करके फिर ही घर भेजना. सो डू यू अंडरस्टैंड दिस? सबको समझ में आ गया 4 घंटे का क्या कार्यक्रम करना है? फर्स्ट सेशन इज इंट्रोडक्शन सेशन, सेकंड सेशन इज मंडल, थर्ड सेशन इज पेपर प्रेजेंटेशन, फोर्थ सेशन इज वैलिडिक्टरी. फिर से लिख लीजिए, पहला परिचय सत्र, दूसरा मंडल सत्र, तीसरा प्रस्तुति का सत्र और चौथा आहुति सत्र. परिचय सत्र में शिक्षण मंडल का परिचय और वातावरण निर्मिति. शिक्षण मंडल के परिचय हम सबको जानते हैं, ध्येय श्लोक, ध्येय वाक्य का उपयोग करके विचार बताना, गतिविधि और हमारे 5 सोपान बताना. और वातावरण निर्मिति के अंदर सुभाष स्वराज के ऑब्जेक्टिव बताना, फिर शोधवीर सम्मान समारोह तीनों शब्दों के अर्थ समझाना, फिर उसके बाद में शिविर के 4 सत्रों को समझाना. ये टोन सेटिंग में जाएगा. फिर उसके बाद में नेक्स्ट इज मंडल. मंडल के अंदर मंडल संयोजक पहले से तय करने, गण विभाजन करना, 12 से 20 का एक एक गण हो. जितने अपने पेपर राइटर होंगे सबको अपन बुलाने वाले. तो जैसे मान लो किसी प्रांत में 150 पेपर आए हैं और अपने को लगता है 100 विद्यार्थी शोधवीर सम्मान शिविर में आएंगे, तो 100 के 5 या 6 गण करने पड़ेंगे. उतने मंडल संयोजक अपने पास होने चाहिए. मंडल संयोजकों को मंडल का विषय क्या है? समयदान का महत्व मंडल का विषय है. उसमें देश के लिए समय देना कितना महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर विचार करना. सबके पास 24 घंटे है, जो ज्यादा से ज्यादा समय प्रोडक्टिव बिताता है उसी को होता है, वगैरह वगैरह सारी बातें उसमें उदाहरण के साथ आए. तीसरा, उसके बाद में मंडल के अंत में 2 सूचनाएं देनी. पहली सूचना मी फॉर माई नेशन की देनी और दूसरी सूचना अपने अपने जगह पर मंडल शुरू करने की. सो दिस इज मंडल सेशन. शुड बी डिवाइडेड इनटू प्रॉपर गणा. Minimum 12, maximum 20 should be the Gana. How many Gana will be there? That many Mandal resource person who will conduct the Mandal should be available. In Mandal, the subject of the Mandal is dedicating time for the nation. We have to keep 2 or 3 reporter who will document the Mandal. Mandal के documentation अभिलेखन के लिए 2 या 3 लोगों को दायित्व देना. And then at the end, we have to make 2 calls. Number 1 is call for me for my nation, dedicated 1 month from 1st of December to 30th December. And second call is starting Mandal at their own place, in their college or at their house, home. So this is the Mandal session. उसके बाद में होगा paper presentation. That should be according to category. Snatak, that is graduate, Parasnatak, postgraduate, PhD scholar, Shodha Chhatra and open. 4, 5, whatever number of people are there, accordingly we have to arrange for presentation. In that we need 2 or 3 judges in each room. In presentation room we'll have at least 2 or 3 judges. They will be judging the presentation and prizes will be given to only those papers who are presented. आपने पहले इवैल्यूएशन किया, उसमें किसी को फर्स्ट प्राइज मिला है लेकिन वो शिविर में नहीं आया. फर्स्ट प्राइज विल गो टू द सेकंड पर्सन, सेकंड प्राइज विल गो टू द थर्ड पर्सन एंड थर्ड प्राइज विल गो टू द फोर्थ पर्सन. इफ नंबर 2 डजंट कम, देन फर्स्ट प्राइज विल गो टू द फर्स्ट पर्सन, सेकंड प्राइज विल गो टू द थर्ड पर्सन. जो उपस्थित नहीं है शोध शिविर में उसको पुरस्कार नहीं दे. बहुत सिंपल सी बात है. सो that is about this research warrior award camp. आहुति सत्र के पॉइंट भी मैंने बता दिया, आहुति सत्र का कैसे रचना करनी वो भी मैंने बता दी. आप लोगों को कुछ प्रश्न हो तो बताइए.